अगर चोर को मार दें तो फिर बहुत बड़ा एक्शन है। अगर उधर जिधर चोरी करने गए हैं उधर का को मर जाए तो कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। थल्ले तो पिस्तौल कढ़िया तो उन्होंने फायर मारिया सीधा। अल्लाह वालों चौकीदार बच जाता है। ऐसे होता है कि जैसे धमाका होता है, टायर फटता है। ऐसे सिक्योरिटी गार्ड ने कान खींचे थोड़े से खड़े किए हैं कि लगता है कि जैसे हमारा कोई नुकसान कर रहा है। हालांकि उन्हें फायर फिर पठान ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। पठान ने अगों फिर उन्होंने जवाब दिता। उन्हें जो उन्होंने सट्टिया ਉਹ ਰੱਬੋ ਤਵੱਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ लेकिन नहीं भज्या गया, डिग पिया। फिर आए रोज चोरियां डकैतियां सर्कल चूनियां जो है वो जरैम का गढ़ बन चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुलापुर रोड पर नोबल 3 राइस मिल पर, जहां पर रात की तरीके में 2:30 बजे के करीब 3 जो मसल्ला चोर हैं वो आकर छत पर चढ़ जाते हैं और आउटडोर जो हैं एसी के वो चोरी करना शुरू कर देते हैं। एक आउटडोर चोरी करके लेकर जा रहे थे, जिस पर जो गार्ड है मिल का अब वो उसको आवाज़ देता है कि रुक जाओ भाई, कौन हो तुम, अपनी शनाख्त करवाओ, जिस पर वो आगे से फायर खोल देता है। ये सारा किस्सा कहानी क्या है, मौके पर जो मुलाजमीन मौजूद थे उनकी ज़बानी आपको सुनवाते हैं। अच्छा दसिया जे कि जदों तुहानूं पता लग्या ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੌਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ। ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹ ਸੱਟਿਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਧਾ। ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਫਿਰ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਪਠਾਨ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਿਆ ਉਹ ਰੱਬੋ ਤਵੱਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖੋਪੜੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭੱਜਾ ਫਿਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ लेकिन नहीं ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸਨ ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ? ਮਹੱਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਮੋੜ ਦਾ? ਠੀਕ ਮੋੜੀਲਾਬਾਦ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਫੜਨਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਫੜੀਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, 2 ਨੱਸ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ? ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵੀ। ਇਹਨੇ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਸ। ਇਹ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨੀਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਫੜੀਚਰ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ 4 ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਗਰਜ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਕੂਏ ਇੰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਰੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਟਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੁਲਾਪੁਰ ਨਾਰ ਤੇ ਬਤੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਪਰਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿੰਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਕਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਊਟਡੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਜਾਨੇ ਕਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਖੋਲ ਗਏ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਬਿਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ भी। लो जी, ये सूरत हाल है, सारा इन्होंने आपको बता दिया है। यहाँ पे मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि जब वो पकड़ा जाता है तो उसने अपने आप को बड़ा यानी कि एहसासदारों का एक मुलाजम है उसका भाई शो करने की कोशिश की है कि मेरा भाई एक कर्नल रैंक पे है तो मैं जनाब बड़ा अच्छा यानी कि मेरी बैकग्राउंड है, मैं ऐसा नहीं हूँ। जबकि पकड़ा वो मौका वारदात पे जाता है चोरी करते हुए। अच्छा दसिया जी ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ? सर जिदों इत्थे आए ने तकरीबन रात तो 2 तो 2:30 बजे का टाइम था, जिस वक्त ये आके इन्होंने इधर से पीछे से दीवार फैक्ट्री की उसके ऊपर से चढ़े हैं। इसके साथी 2 ऊपर चढ़ गए हैं, 3 पीछे खड़े हुए थे। इन्होंने इधर से एक एसी काट के और डोज होता है जो एसी का आउटडोर उतार दिया, उसको कंधे पे रखा और उसको बोला कि तुम इसको ले जाओ उधर पीछे, तो मैं ये तुम्हारे आते तक इस दूसरे को भी काट लेता हूँ, फिर आप चलते हैं। उसके बाद ये जब दूसरा एसी को और डोर काटते हैं उसको ऐसे होता है कि जैसे धमाका होता है, टायर फटता है। ऐसे सिक्योरिटी गार्ड ने कान खींचे थोड़े से खड़े किए हैं कि लगता है कि जैसे हमारा कोई नुकसान कर रहे हैं चोर डकैत। तो देखा उसने तो उसे कोई नज़र पड़ी है कि यार इधर तो ये तो एसी खोल रहे हैं।
उसने थोड़ा सा दरवाज़ा, छोटा दरवाज़ा खोला, गन पकड़ के बाहर गया चला। उसने देखा कि चोर वो एसी का डोर लेके मोढ़े पे रख के जा रहा था। उसने बोला, ये क्या लेके जा रहे हो, उसको इधर रखो, बात सुनो, कौन हो तुम, किधर जा रहे हो। उसने नहीं बोला। उसने पठान ने बोला सिक्योरिटी गार्ड ने कि मैं तुमको फायर मार दूंगा, बताओ आप रुक जाएं या मारूं फायर। उसने इतनी देर में पिस्टल निकाला और पठान को फायर मारा। पठान को अल्लाह की कुदरत से पठान को फायर नहीं लगा, लिहाजा पठान ने फिर दोबारा बुलेट मार के उसको फायर मारा, लेकिन उसको भी नहीं लगा। इतनी देर में छत पे जो चोर खड़ा हुआ था उसने पठान को फायर मारने की कोशिश की, वो भी नहीं लगा, लिहाजा गार्ड ने उसको फायर मारा उसके मुतवादल, लिहाजा उस चोर के चेहरे पर लग गया। लेकिन ये नहीं पता किधर किधर शरले लगे हैं, क्योंकि बड़ी गन का फायर था। इसके बाद वो उसने फायर लगने की कोशिश की कि भागने की, लेकिन नहीं भागे। फिर पीछे से उसने नमक का छलांग मारी फायर लगते हुए। फिर भी उसने बहुत जुर्त की है कि मैं इधर से नस जाऊं, लिहाजा थोड़ा 4 कदम चला, इससे नहीं भागा गया, इधर थक हार के गिर गया। लिहाजा इतने में फिर सिक्योरिटी गार्ड ऊपर से पहुंच गया। लिहाजा फिर इतने में उसने कॉल कर दी कि उधर 15 पर कि सर इधर ये वाक़ा वारदात बन गया। पुलिस तकरीबन 2-1.5 घंटे में उधर पहुंची है। ये मुल्लापुर रोड पर नोबल 3 पर। 2 घंटे में पहुंची जी ये साथ तो था ना यार, कोई बात नहीं, ये तो इधर तो 3 मिनट भी नहीं लगते इतनी देर में। इतने में चाहे पठान को मार जो कुछ भी नहीं बनता। ये चोर, अगर चोर को मार दें तो फिर बहुत बड़ा एक्शन है। अगर उधर जिधर चोरी करने गए हैं उधर का कोई मर जाए तो कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। नादरीन, आपने इनकी बात सुनी। यहाँ पर वारदात हुई कैसे है, कैसे डाकू पहुंचे हैं, किस तरह इनकी आपस में फायरिंग का तबादला होता है और फिर कैसे छत से भागने की उसने कोशिश की है और फिर उसको फायर लगा, पकड़ा गया। इलाहाबाद मोहल्ला फैसलाबाद का ये रहायशी, इसका नाम अली अहमद है। अभी इसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस बताई जा रही है। लाहौर अस्पताल में ये मुंतकिल हो चुका है, लाज मालजा जो है वो जारी है। यहाँ पर मैं पंजाब पुलिस से शिकवा भी करूंगा कि आप लोगों ने आकर इनको अप्रिशिएट करना था, इनको शाबाश देनी थी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहादुरी वाला काम किया है। लेकिन उन्होंने आके जनाब इनका जो दिल है वो उसको ही तोड़ दिया है कि भाई आपने कानून हाथ में लिया क्यों है, आप कौन होते हैं इसको फायर मारने वाले। अगर उसका फायर गार्ड को लग जाता तो उसके बच्चे यतीम हो जाते, अगर किसी और मुलाजिम को लग जाता उसके बच्चे यतीम हो जाते। ये हमारी सूरत हाल है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है कि गार्ड ने ठीक किया है या गलत किया है। अगली स्टोरी के साथ फिर होती है मुलाकात। अल्लाह निगहबान।